Students are joining soon. We are waiting for more 5 minutes.
Good afternoon, ma'am. Jai Hind, everyone. Jai Hind, Rashmi, ma'am. Thank you for joining. Jai Hind. Everyone, good afternoon. We are just waiting because many of the colleges they are setting camera in their Audi. Okay, Like you ma'am. have setted that Kailas is setted, that Samarpan is setted, Sambhunath has setted, like Sahara has setted. So like people are setting and we are allowing others to join directly so that there are many students. Maybe you can cross 1,000 students today. Yes, ma'am, I can see. Our students are also sitting. GNC Yeah, Champa. it was are there, yes. So Yes. you can add both the language. You can go with the English because there are Yes, all the yes. students we are using. Maybe some pharmacy college students are also joining us. So like that, you can mix your tone so that they can understand. All can Yes. understand. I'm Thank you just for letting me know. That's what I wanted to ask you, ma'am. Can I yeah use yeah Hindi in between? yeah Hindi more prone because More Hindi will go, na? yeah, yeah. Okay, ma'am. No issue. Just waiting 2-3 minutes more to join, then we'll start. Sure, ma'am. Because this is very important topic as you're supposed to take today. So I need maximum to join today. Okay, ma'am. Still registrations are going on, ma'am. Even Deep Institute. Thank you so much, sir, for joining. You can connect with your students also. All the respected teachers who have joined, if possible, please send the link to your students. If they don't want a certificate, they can directly join because that is very much benefited topic today, as madam is going to take. That is the skills needed for the patient care. So everyone, please share with your students because all are supposed to work with the clinical setting.
7 बजे के बाद चलेंगे। हाँ, हम उनको फोन करेंगे कि नहीं यहीं पे। Jai Hind everyone. I request TNI members to be on a screen with the video. So you could start. I also request Dr. Rashmi Rawat to be present on a screen. जय हिंद आप सभी को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच आप लोगों ने ज्वाइन किया आज। और हमारे पास ऑन स्क्रीन 203 candidates हैं और ऑफ स्क्रीन in the halls more than 1000 students are there from different colleges. So we are here with Dr. Rasmi Rawat from Champawat, Uttarakhand. Without any further delay, I request all the TNI member, whoever are present, please be on screen. Jai Hind everyone. A very good afternoon to one and all present on this screen and in the halls. Thank you so much for joining and boosting us. This is the very first webinar for the 1 year series, and today we are supposed to have a very good gathering that we already had. So thank you so much everyone. Now we'll start, and before starting we'll try to have all the TNI member on the screen as I'm not able to see. Yes, Lakshmi have joined. Jasmine have joined. Bhumika madam joined. So we'll start. Thank you so much for joining. We'll start with the virtual lamp lighting and the prayer. सरस्वती भगवती
धन्यवाद. So today we are starting with our first webinar series, the first lecture, that is effective communication skills in patient care. And we have with us Professor Dr. Rashmi Rawat, ma'am. Just setting my screen. Madam is a principal in Government Nursing College, Champawat, as she is in UG and PG in psychiatric nursing from AIMS, New Delhi, and PhD from AIMS, Rishikesh. Madam is holding more than 14 years of experience in teaching and administrative and in the government and private institution as a third chapter in the psychiatric nursing and psychology textbook from publication of reputed areas of research in improving the communication skill for the nurses. And she also acted as a resource person in various national and international conferences, organized various national and international conferences, workshop, webinars, seminars, and had been faculty for the training nurses in the empathetic communication skills in Rishikesh. Also developed a video-based learning program in empathetic communication skill for the nurses. Published article in PubMed and Scopus Index journals. She also received token of appreciation from Uttarakhand government for organizing training program in mental health for the field workers of Uttarakhand under the NHM in collaboration with NIMHANS and AIMS Rishikesh. Madam had the best research paper award on second international conference on transforming perspective of nursing research leading to clinical innovation 8 to 10 September 2023 organized by Samarpan Institute of Nursing Paramedical Sciences. She is also a member in the capacity building committee for drafting roles and responsibilities of various nursing cadres in government of Uttarakhand. She is being inspector as a government and the INC and examiner and the paper setter in many universities. So today we have with us Dr. Rashmi Rawat. We welcome with an open heart. Thank you so much, ma'am, for joining today's webinar and accepting in a very short period. I know that you are always ready to give benefit to our nursing students and the nursing fraternity. And as you are a proctor for the communication skills, we are very happy to have you with us. And there is none, I can say, that who can just get these topics expressed very well for our students and the faculties. We have with us our secretary, Madam Bhumika Singh. We have our program officer, Lakshmi Pandey, with us, and Jasmine also has joined, but she's not able to open the video. I request our secretary, Madam, to say a few words in the welcome of Dr. Rashmi Rawat, then we could have started this session. And I also asked to Mr. Vivek to make co-host to Madam Rashmi Rawat in between. मैम co-host है. Okay. Very good afternoon, ma'am. Respected Rashmi Rawat, ma'am, today's speaker and guest, all the participants. I heartily welcome you all for today's first webinar series conducted by the Samarpan College of Nursing under the banner of Trained Nurses Association of India, Uttar Pradesh. I also thank Deepti madam for initiating and starting the first session of webinar for everyone. Thank you all for joining us and supporting this webinar in huge number. So very best to everybody, all the SNA team and the TNAI team of Uttar Pradesh branch. Best regards from my side. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Now I request Dr. Rashmi Rawat, and she can start as we are already delayed today. A very good afternoon to all and Namaskar, Jai Hind. Thank you, ma'am, for giving me opportunity, and thank you, TNI UP State Branch. As ma'am has told me for this webinar on, I think, Thursday, ma'am,
but this topic is very close to my heart as my research is also on this communication skills, improving communication skills of nurses. So I will try to do the justice with this topic. So thank you once again, ma'am. I'll share my screen. Yeah. Is it visible, ma'am? Visible? Sharing, ma'am, sharing. In process. Okay. Ma'am, stop and reshare, please. Yeah, One it's minute. come. Oh, you can Okay. just reshare. आप पहाड़ों पे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा आपको. अभी हो गया, मैम? आ रहे ऑन द वे. आ गया मैम. आप उसको स्लाइड शेयर कर दीजिए. ओके. नाउ यू कैन कंटिन्यू विद दैट. थैंक यू सो मच वंस आ अगेन. गया, मैम? स्लाइड शेयर हो रहा है? हो जाएगा, वो 1 or 2 सेकंड लेता हाँ. है आपकी तरफ Done, से I थोड़ा think. सा. Done, I think. यस, डन. कैरी ऑन. Okay, I'll start with the topic. The topic given to me is therapeutic communication in clinical practice. So, I would like to like the audience to reflect on your own positive experience first. Imagine that any one of you or any loved one of yours कि कोई आपका रिश्तेदार या आप कभी हॉस्पिटल में गए हो या हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो या किसी भी काम से या किसी को देखने के लिए गए हैं, तो what positive experience you had, like let's say a nurse visited you who has shown very good interaction with you. So आपके उस समय किस तरह के भाव थे, किस तरह की फीलिंग्स थी? I just wanted you to reflect, just imagine that experience. Again reflect on your own negative experience. Any loved one of your or you visited hospital and the nurse who you encountered was not so empathetic or not so good at communication. तो आपका उस समय किस तरह का रिएक्शन था, किस तरह के इमोशंस थे और किस तरह की फीलिंग्स थी? सो जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन दोज. अब मैं यहाँ पर एक एक्सपीरियंस अपना बताना चाहूंगी. जब मैंने अपनी डिलीवरी की थी मेरी बेटी की, तो उस समय क्या होता है, विमेन बहुत मेंटली और फिजिकली वीक होती है. और माय डॉटर हैड फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, तो उसको नीकू में जाना पड़ा और वहां पे मुझे बार बार ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जाना पड़ता था. तो वहां पे जो सिस्टर थी, जो नर्स थी, I don't want to say, don't take it personal if anyone is there from clinical area, but her communication was not at all good to me. और उस समय when we were so physically and emotionally weak, वो जो the way the way the people react to you or communicate with you, वो बहुत ही इफेक्ट डालता है आपके दिमाग में. तो वो बहुत रूड थी और वो मुझे आज तक याद है. तो सी the how you make people feel, people will remember that whether it is good or whether it is bad. So I would like to start this topic, why this communication is important, why communication matters in our field. So if we go back in the history, from Nightingale to Peploe, I say, so in 1800s जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल हमारी पाइनियर कही जाती हैं, उन्होंने भी एम्फसाइज किया था कि जो कम्युनिकेशन है वो एक फाउंडेशन है पेशेंट की रिकवरी में. नर्स पेशेंट रिलेशनशिप या नर्स पेशेंट कम्युनिकेशन है, इट बेस द फाउंडेशन ऑफ पेशेंट रिकवरी. Then in 1950s में जो communication था, it has gained focus in mental illness, like the patients who are having mental problem या mental illness, उसमें communication पे बड़ा focus हुआ 1950s में. And then came the founder, you can say the founder of psychiatric nursing, Hildegard Peploe, in 1952. ये मेरे को फोकस कर रहा है. एक्सक्यूज मी मैम. स्वाति मैडम, आप सबको म्यूट कर दें प्लीज अपनी तरफ से, एंड रश्मि मैम को अनम्यूट कर दें, मुझे अनम्यूट कर दें. और Yes, ma'am. congratulations everyone, we have crossed 300. Now we are not able to make others to join because that is already
Ma'am, you are muted. Yes, can you hear Deepti, me? ma'am, you are muted, ma'am. Can you hear me? Karina. Yes. Okay, thank you. Thank you so much. Now you can carry on, ma'am. I'm audible now? You are very well audible. You can Okay, continue. fine. So Hildegard Peplau has given this theory of interpersonal relations. We all study it during our fundamental classes also. So in that you might have studied about the phases of relationship, and she has focused. She has emphasized communication as a cornerstone of healing for in this theory. So this is how communication has came into picture. Okay, if I define the communication, what is communication? ये वो एक स्पेशलाइज फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि हम हेल्थ केयर वर्कर्स यूज करते हैं क्या करने के लिए हीलिंग रिलेशनशिप स्टेब्लिश होता है पेशेंट और नर्सेज और एनी हेल्थ केयर वर्कर के बीच में इट नॉट ओनली केटर्स द फिजिकल प्रॉब्लम्स it caters the emotional problems also, that is it is catering body and mind both. So it is a healing relationship that builds trust and rapport between the patient and the provider. It is holistic, that is it will be like physical, it will cater to the physical needs, emotional needs and psychological needs of the patient, and it is universal. It means whether you are interacting with the relatives, whether you are interacting with the patients or any other else important to the patient, and in every situation, whether you are in ward, whether you are in OPD, whether you are in like diagnostic clinics, you need to have this therapeutic communication with the patients or the relatives, not only in the complex situations like when the patient is having critical illness या पेशेंट को कोई टर्मिनल इलनेस है या डेथ सिचुएशन हो गई है, वहीं आपको कम्युनिकेशन थेरेप्यूटिक नहीं रखना, हर जगह रखना है. सो अगर आपका कम्युनिकेशन थेरेप्यूटिक नहीं है, then what is at stake? If you don't communicate therapeutically, there will be poor patient outcomes. Obviously, if there is communication failure, it will definitely undermine the expected clinical results. What you are expecting from the patients, what clinical outcome you are expecting, that will not be there. Increase conflict. यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी. When I was presenting my topic, जब मेरी पीएचडी में सिलेक्शन हुआ और मैंने अपना टॉपिक प्रेजेंट किया, यूजुअली बहुत कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका वन गो में टॉपिक सेलेक्ट नहीं होता है, बट व्हेन आई प्रेजेंटेड दिस टॉपिक इन फ्रंट ऑफ द डीआरसी कमिटी, तो वन गो में वो कम्युनिकेशन का टॉपिक सेलेक्ट हुआ. हमारे डायरेक्टर ने बोला ओके वी विल डू दिस टॉपिक, बिकॉज ही ऑल्सो एड्रेस्ड कि पहले क्या होता था कि पेशेंट डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर्स को भगवान मानते थे, लेकिन अभी क्या होता है कि हम उनको केयर भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट वी लिसन टू सो मेनी न्यूज कि आज ये कन्फ्लिक्ट हुआ, वहां पर पिटाई हो गई, वहां पर हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ मिसबिहेव हो गया. क्यों? बिकॉज there is lack of good communication between the patient and the relatives and the healthcare workers or the patients. So it increases the conflict when your communication is not therapeutic. Again, next is it results into adverse health events, like when there is poor communication between the teammates also, ultimately it will lead to more medical errors, and it can lead to harms which can be prevented with better communication. So I would like to throw light on this कि अगर आपको एक good communicator बनना है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि foremost requirement जो good communicator होती है is to be empathetic. ठीक है, तो थोड़ा सा लाइट मैं यहाँ पर empathy पे डालना चाहूंगी. एम्पैथी क्या है? एम्पैथी इज कि आप अपनी आप को दूसरे की जगह पे रखकर देख रहे हो, या यू आर वॉकिंग इन अनदर शूज. ठीक है, सो हमें नहीं पता किसी के जूते कितने टाइट हैं या कितने लूज हैं जब तक आप उनको नहीं पहनते हो. सो उनकी सिचुएशन पे जब हम नहीं खड़े होते तो हमें नहीं पता कि वो क्या फील कर रहे हैं, किस इमोशनल दौर से गुजर रहे हैं. सो मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि जब हम हेल्थ केयर सेटअप में काम कर रहे हैं, द पीपल हु आर विजिटिंग टू यू, द पीपल हु आर कमिंग टू हॉस्पिटल, वो पिकनिक मनाने नहीं आता है. ठीक है, कोई खुशी खुशी हॉस्पिटल नहीं आता है until unless it is delivery cases. Otherwise many people come, or all the people come in sorrow or some problems. So we need to be very empathetic. We need to have that feeling of you express that empathy towards the patients or the relatives. So we need to
understand their situation and express that understanding back to them. हाँ, एक और चीज यहाँ पर आती है, सिंपैथी वर्सेस एम्पैथी. हम सिंपैथी और एम्पैथी में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो व्हाट इज सिंपैथी एंड व्हाट इज एम्पैथी, यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि सिंपैथी क्या है. व्हेन यू आर फीलिंग सॉरी फॉर योर लॉस, फॉर द लॉस ऑफ अदर, कि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो आप बोल रहे हो, ओ भगवान ने आपके साथ ये बहुत बुरा किया, आई एम सो सॉरी टू हियर दैट. दिस इज सिंपैथी. ओके. बट एम्पैथी इज आई कैन अंडरस्टैंड हाउ पेनफुल इट इज. मैं समझ सकता हूं आप किस दौर से गुजर रहे हैं, आपके लिए कितना मुश्किल होगा ये दौर. तो दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स इज गिवन व्हेन यू आर शोइंग एम्पैथी टू द पेशेंट्स. सो जैसे कि ये मैंने पिक्चर दिखाई है यहाँ पे एक नर्स है और पेशेंट है. पेशेंट का मैस्टेक्टमी होने जा रही है. तो नर्स कह रही है, अगर वो सिंपैथी शो करेगी तो वो ये बोलेगी कि बड़े दुख की बात है कि आप अपने शरीर का एक अंग होने जा रही हैं. बट अगर वो नर्स एम्पैथेटिक है तो वो ये बोलेगी कि मैं समझ सकती हूँ कि यह सब आपके लिए कितना मुश्किल है. मैंने काफी पेशेंट्स को इस सिचुएशन से जूझते हुए देखा है और ये बहुत ही डिस्ट्रेसिंग है. इट मीन्स यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन द शूज ऑफ द पेशेंट. यू आर validating the emotions of the patient. So this is the empathy. Okay, so this is the difference between empathy and sympathy. So during my research also and during the literature search also, I have come across these 7 skills which are required to be therapeutic, dealing therapeutically with the patients. And ये बहुत ही practical skills हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर सकते हैं. And these skills are active listening, using non-judgmental approach, acknowledge करना, validate करना, empathetic language use करना, understand and express the differences in individuals and avoid labels. Up one by one, I will discuss all of these. First is active listening. Active listening, you see, हम कभी कभी जब हम सुन रहे होते हैं किसी को, तो हम कई बार रिएक्ट करने के लिए सुनते हैं. तो हमें रिस्पॉन्ड करने के लिए सुनना होता है. और जब आप सुन रहे होते हो तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज, सबसे पहले लिसनिंग में बॉडी लैंग्वेज आती है. तो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो ऐसी होनी चाहिए कि आप सामने वाले को लगे कि आप इंटरेस्टेड हो उसको सुनने में. ठीक है. सो बॉडी लैंग्वेज में व्हाट आर देयर, ओपन पोस्चर, लाइक डोंट सिट लाइक दिस, सिट विद योर ओपन आर्म्स. ओके. सो जब आप ओपनली सिट, ओपन आर्म्स रखते हो, ओपन पोस्चर शो करते हो, तो इट शोज योर इंटरेस्ट टुवर्ड्स द पेशेंट. यू आर लिसनिंग टू द पेशेंट. मेक आई कॉन्टैक्ट. जब भी आप उससे बात कर रहे हो पेशेंट से, तो आई कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करने की कोशिश करो. आई कॉन्टैक्ट बहुत जरूरी है. अगर आप उसको नहीं आई कॉन्टैक्ट करते हो तो अगेन यू आर गिविंग अ नेगेटिव मैसेज टू द क्लाइंट. लीन टुवर्ड्स अ पेशेंट. आई थिंक ये आपने अपने फंडामेंटल्स के लेक्चर्स में भी पढ़ा होगा. सोलर करके हम एक पढ़ते हैं. सोलर इज सिट फेसिंग द क्लाइंट, ओ इज ओपन पोस्चर, एल इज लीन टुवर्ड्स द पेशेंट. जस्ट उसकी बात सुनने के लिए लीन करो ताकि उसे समझ में आए कि यस, यू वांट टू लिसन टू हिम. देन नॉड योर हेड. ऑब्वियसली नॉडिंग करना जरूरी है ताकि पेशेंट को लगे कि आप उससे सुन रहे हो. Maintain a professional space. See, there are a lot of many kind of space. A personal space होता है, public space होता है, social space होता है. So उतना space हमें maintain करना है कि आप उसकी बात को ढंग से सुन सको और इतना space हो कि वो आप uncomfortable ना हो उस space से. तो that professional space should be maintained between you and the patient. Use touch appropriately. See, touching is important, but don't touch unnecessarily. And touching should be appropriate and culturally sensitive. So जब हम सेम सेक्स से साथ डील कर रहे होते हैं तो इट इज ओके टू टच ऑन हैंड्स. ठीक है. बट जब आप अपोजिट सेक्स के साथ डील कर रहे हो तो डोंट टच हैंड्स एंड थाइज. जस्ट टच, पैट शोल्डर. शोल्डर पे आप हाथ लगा सकते हैं. सो दिस इज द टच शुड बी यूज्ड very sensitively. Then offer general lead. Yes, yes, I see, go on. Like you have to tell. पेशेंट बात कर रहा है तो इस तरह के वर्ड्स आप अगर बीच में यूज करते हो तो पेशेंट को लगता है कि आप उनपे इंटरेस्टेड है, उनकी बात सुन रहे हो. Again, these are pitfalls. These are like you are again and again watching your watch कि भाई कितना टाइम हो गया, या आप बार बार फोन देख रहे हो. सो ये सारे भी आपके जो कम्युनिकेशन है उसको नॉन थेरेपेटिक बनाते हैं और पेशेंट
will not discuss anything with you and don't develop trust with you. Silent, yes. I would like to give example here. मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बहुत एग्जाम्पल देती हूँ इसका. साइलेंट हम कैसे यूज करते हैं, मैं अपना ये एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ. आई हैड अ MSc एग्जाम. जब मेरा MSc प्रैक्टिकल एग्जाम था तो उस समय मुझे प्रोसीजर मिला कि थेरेप्यूटिक IPR स्टेब्लिश करना है, थेरेप्यूटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पेशेंट के साथ स्टेब्लिश करना है. तो व्हेन आई वेंट टू द पेशेंट, तो पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिक थी एंड पेशेंट वाज वेरी इरिटेटेड. सो जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला अरे वो तो बात नहीं करेगी, भगा देगी. तो मैं उसके पास एक बार गई, उसने सच में मुझे भगा दिया. दूसरी बार गई, उसने फिर मुझे भगा दिया. ठीक है, देन आई वाज वेरी वरीड कि भाई मुझे नंबर नहीं मिलेंगे अगर मैंने इससे बात नहीं की तो. So what happened? I went to the examiner. I said, "Oh, she is not like entertaining me, ma'am. She is, making me get lost from there every time I went to her." So examiner told me, "No issue. You just go and sit there." So I just went, and I went there. I told her, "Okay, you don't want to talk to me. I'll just sit here. And if you want to talk, then you start talking." So I just sat there for 2 minutes or 3 minutes. I just sat there, and after that she started talking with me. And literally उसके बाद वो इतनी शांत तरीके से बात कर रही थी, बहुत हंस रही थी. तो इट इज लाइक दैट. मैं यहाँ पे एग्जांपल ये इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वहां पे मैंने साइलेंट यूज किया और नॉन जजमेंटल अप्रोच यूज किया. साइलेंट मीन्स साइलेंट इज you have sat silently there. पेशेंट को लगा यू आर इंटरेस्टेड इन द पेशेंट. एंड नॉन जजमेंटल बिकॉज पेशेंट आपको बार बार भेज रहा है, आप दोबारे जा रहे हो उसके पास. अगर आप नहीं जाओगे तो आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो. आप ये मैसेज दे रहे हो कि भाई वो तो बेकार है, वो मुझे एंटरटेन नहीं कर रही, तो मुझे भी उसके पास नहीं जाना. तो यू आर शोइंग रिजेक्शन. सो वो नहीं करना है. सो दिस इज द यूज ऑफ साइलेंस. एंड अगर मैं साइकेट्री की बात ना करूं तो साइलेंस आप कैसे यूज कर सकते हैं. देयर आर मेनी सिचुएशन व्हेन वी यूज साइलेंस, क्योंकि कभी कभी पेशेंट ओवरवेल्म्ड होता है. लेट्स से यू हैव टोल्ड द पेशेंट दैट कि उसको कोई टर्मिनल इलनेस होगी, लाइक कैंसर आप रिवील कर रहे हो, आप HIV रिवील कर रहे हो, या आप किसी के डेथ रिवील कर रहे हो. तो उस समय क्या है, पेशेंट ओवरवेल्म हो जाएगा एंड ही विल क्राई. ठीक है, और ही नीड्स वेंटिलेशन एट द टाइम, कथारसिस होगा उसका. तो उस समय उस सिचुएशन में हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये फॉल्स होप्स हैं. सो यू जस्ट नीड टू सिट देयर एंड लिसन टू द पेशेंट. सो दैट देयर आल्सो यू कैन यूज साइलेंट थेरेप्यूटिकली. Then again there is one more thing, listen for the cues provided by the patient. कभी कभी जब आप पेशेंट से बात कर रहे होते हैं तो पेशेंट ना बहुत सारे क्यूज भी दे रहा होता है. जो चीजें उसको परेशान कर रही होती है वो बता रहा होता है आपके बातों में. जैसे कि इस एग्जाम्पल से मैं बताऊंगी. ये पेशेंट है, इसकी कमर में दर्द है. वो बोल रहा है कि मुझे काम पर इस कमर की दर्द की वजह से मैं काम पर नहीं जा रहा हूँ और मेरे बॉस से भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है. सो अगर आप नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन यूज करते हो तो पेशेंट को नर्स कहती है, अच्छा अगर आप अपने पेन को रेट करना चाहोगे 0 से 10 तक तो क्या रेट करोगे. तो यहाँ पर क्या हुआ, नर्स ने क्या किया, शी हैज नॉट लिसन्ड व्हाट ही इज सेइंग. उसने बोला मेरे कमर में दर्द है, अब मुझे तो असेसमेंट करना है, मैं 0 से 10 तक कितने नंबर उसको लिख दूं. ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपना काम खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ. बट इफ यू रिप्लाई दिस, आई कैन अंडरस्टैंड आपके इस कमर की दर्द की वजह से आपको छुट्टी लेनी पड़ रही है और आपको काफी तकलीफ हो रही है, आपको आपके बॉस से भी प्रॉब्लम हो रही है. इट मीन्स यू हैव लिसन्ड, यू हैव रिफ्लेक्टेड इट बैक टू द पेशेंट. आप इससे परेशान हैं, लाइक आपने इमोशन पकड़ा उसका. समझ में आया. सो दिस इज therapeutic here. Okay, so you have to listen the cues and respond to the patient in this way. Again, using non-judgmental approach. Non-judgmental is हमारी बहुत ही अच्छी आदत है, you can say. मतलब I'm sarcastically I'm saying कि हम दूसरों के behavior से उनको जज करते हैं कि okay, let's say if I say मेरे पास एक सब्सटेंस अब्यूज का पेशेंट आया. ठीक है, हमने उसको ट्रीट किया, हमने उसको मेंटेनेंस पे डाला एंड फिर वो 2 महीने बाद वापस आ गया. ठीक है, फिर ऐसे वो बार बार आ रहा है. सो व्हाट वी से, अरे ये तो ऐसा ही है, ये बार बार आ जाता है, इसको
व्हाट वे हम वो टर्म्स यूज करते हैं ना, अरे ये बेवड़ा है या ये कुछ भी एडिक्ट है, इस तरह के वर्ड्स हम यूज करते हैं. सो वी आर बीइंग जजमेंटल. बट अगर आपको नॉलेज है, अगर मैं सब्सटेंस अब्यूज की बात करूं, तो वो जो पेशेंट्स होते हैं वो बार बार रिलैप्स में जाते हैं. अगर कोई सीधा सोबर होता है तो उससे पहले 6 या 7 बार वो रिलैप्स में जाते हैं. दैट इज नॉर्मल प्रोसेस. सो वी नीड नॉट टू जज द पेशेंट, we need to analyze the situation rationally. Okay, so ma'am, I am only speaking. मैं कुछ पूछ सकती हूँ कि सबको सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Can anyone? बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, सब लोग को Thank you. सुनाई दे रहा है, चैट बॉक्स में मैसेज चल रहे हैं. अभी भी Okay. हमने 300 ऑन स्क्रीन मेंटेन कर रखा है, बच्चे सब आपको सुन रहे हैं. यू कैरी लग ऑन रहा है मैम, वन वे अब हो बहुत रहा है बढ़िया तो चल. इसके. Okay, fine. So this is like So if you want, I non-judgmental. have to open everyone, then so much of chit chat will No, come. no, 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 Ask no, to no, put in ma'am. the It should. chat box. You can ask to put in the chat box, and you can read in between. Okay. So this is That is good. how we have to be non-judgmental towards a patient. एक्नॉलेज का मतलब क्या है? कि आप किसी के एफर्ट्स को आप अप्रिशिएट कर रहे हो पेशेंट को. ठीक है, लेट्स से एक्नॉलेज करने के लिए हम इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं. मैंने हिंदी में ज्यादातर इसमें एग्जांपल्स डाले हैं. या देखकर अच्छा लग रहा है कि आप अपने ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव कर रहे हैं. इट मीन्स you are appreciating the efforts of the patient. So it is called acknowledging. You are acknowledging कि हाँ मैं देख रही हूँ आप ऐसा कर रहे हैं. This is so good. ठीक है, तो this kind of acknowledgement is required by the other person. हमको भी चाहिए होता है ना एक्नॉलेजमेंट. अगर आपको कुछ अच्छा काम किया आपने तो आप चाहते हो अप्रिशिएशन मिले. सो दिस इज व्हाट इट इज. अगेन सेकंड एग्जांपल, आपके लिए अपनी जॉब के साथ साथ अपनी मदर की देखभाल करना बहुत मुश्किल था. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर, दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर देयर व्हेन यू एक्नॉलेज द एफर्ट्स ऑफ द पेशेंट्स और द अदर पर्सन. वैलिडेट बहुत जरूरी है. वैलिडेट करना, वैलिडेट मतलब कि आप किसी भी सिचुएशन को नॉर्मलाइज कर रहे हो, वैलिडेट कर रहे हो, पेशेंट के इमोशंस को वैलिडेट करने की कोशिश कर रहे हो. इसको भी मैं एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगी. लेट्स से देखो ये पेशेंट है, इसका मैस्टेक्टमी होने वाली है. अब पेशेंट परेशान है, पेशेंट एंग्शियस है, या सर्जरी हो रही है, तो पेशेंट परेशान है. तो अगर मैं उसको इनवैलिडेट करूंगी, अगर मैं ऐसे बोलती हूँ अरे ये तो एक छोटा सा प्रोसीजर है, बेकार में परेशान हो रहे हो आप, तो अगर आप इस तरह के वर्ड्स यूज करते हो तो आप उसके इमोशंस को इनवैलिडेट करते हो, आप कम्युनिकेशन को शट डाउन करते हो, आप थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप को शट डाउन करते हो. बट अगर आप इस तरह के वर्ड्स यूज करोगे, आने वाली सर्जरी को लेकर आपका परेशान होना बिल्कुल ही नॉर्मल है ना. जब कोई इंसान पहली बार सर्जरी के लिए जा रहा है, उसको इतना बड़ा प्रोसीजर होने वाला है, तो वो एंग्शियस होगा, वो नॉर्मल है. इसको कहते हैं वैलिडेशन. यू आर वैलिडेटिंग द इमोशन ऑफ द पेशेंट. नाउ अगेन यहाँ पे खत्म नहीं होता है आपका काम. यू हैव टू गिव द इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट देन कि वो एंग्शियस है, वो क्यों एंग्शियस है. यू हैव टू आस्क फॉर द कंसर्न्स. ओके, लेट्स टॉक, व्हाट आर योर कंसर्न्स, आई वांट टू लिसन. एंड आप बताइए, मैं आपकी क्वेरीज को लाइक सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, आपके एंजाइटी को कम करने की कोशिश करूंगी बाय गिविंग द राइट इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट इज एम्पैथेटिक लैंग्वेज. you should use the empathetic language. like मैं समझ सकता हूं कि यह आपके लिए कितना पेनफुल है. मुझे यकीन है कि अगर मैं आपकी स्थिति में होता तो मैं भी ऐसा ही महसूस करता. सो दीज काइंड ऑफ वर्ड्स आर एम्पैथेटिक. ओके, सो दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज वी नीड टू यूज. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस द डिफरेंसेस इन इंडिविजुअल्स. हमने बहुत बार देखा है कि दो पेशेंट्स हैं, दोनों को एक ही टाइप की बीमारी है, पर दोनों का ही रिएक्शन अलग है. ठीक है, लेट्स से यहाँ पे एक फीवर का पेशेंट है, तो एक तो बड़ा हल्ला मचा रहा है, कह रहा है मुझे अटेंशन दो अटेंशन दो. बट एक बड़ा ही नॉर्मल है, कहता है ओके ठीक है मैं पैरासिटामोल लूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा. ठीक है, सो दीज आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हर पेशेंट डिफरेंट होता है. हमेशा हम अपने नर्सिंग केयर प्लान में इंडिविजुअलाइज्ड केयर की बात करते हैं. तो जब आप किसी पेशेंट से कम्युनिकेट भी कर रहे हो तो वो भी इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए. उसका जो पर्सनालिटी है, उसका एटीट्यूड है, वो किसी ने हैंड रेज किया है मैम, हेलो. सो उसका जो पर्सनालिटी एटीट्यूड है हर पेशेंट का डिफरेंट होता है. तो हमें उस पेशेंट के पर्सनालिटी और एटीट्यूड या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ही उससे बात करनी होती है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस कि हम हर किसी को, जैसे एक पेशेंट का
जो भी we need not to give the attention to the diagnosis, we need to give the attention to the characteristics also. Ma'am, someone has raised the hand. Mr. Nikhil, if you want to ask anything, you are raising and answer you when. Shall I continue? Hello, ma'am. Hello. Maybe it by you just carry on. मैं कंटिन्यू करूं? अवॉइड लेबल्स नेक्स्ट है. यू हैव टू अवॉइड लेबल्स. लेबल्स हमारी बड़ी आदत होती है, हम लोगों को लेबल करते हैं ना, अरे ये तो पागल है, ये इरिटेटिंग है, ये अडिक्ट है, ये क्रेजी है, परेशान करने वाला है, वियर्ड है, क्रिमिनल है. सो दिस काइंड ऑफ लेबल्स वी गिव टू द पीपल, और समटाइम्स पेशेंट्स आल्सो वी गिव. ठीक है. सो व्हेन यू आर गिविंग लेबल्स टू द पेशेंट, तो जो वो लेबल्स है ना, उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम उनसे बात करेंगे, या उसके अकॉर्डिंग ही अपना कम्युनिकेशन बनाते हैं. ठीक है. सो लेबल्स डिसाइड्स योर बिहेवियर विद द पेशेंट. वट एवर यू लेबल द पेशेंट, whether it is good or bad, if it is good, you will communicate nicely with the patient. If it is bad, you will communicate non-therapeutically with the patients. So labeling the patient will lead to non-therapeutic communication. So these were some practical skills which we can use in our day-to-day interaction with the patients. There are some more skills which you are, I think, aware of. So I'll just revise them. First is informing. Informing is providing information. So we can empower the patients through knowledge, isn't it? The patient who are coming to us, the patients who comes who are of different backgrounds. So जब आप उनको सही इंफॉर्मेशन देते हो, तो जो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, अब उनके दिमाग में वो जो जाल बुना हुआ होता है वो क्लियर होता है. सो आप ओवर द टाइम उनको क्लैरिटी प्रोसीजर प्रोवाइड करते हो. दैट इज, यू एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स, आप कंडीशंस एक्सप्लेन करते हो, आप ट्रीटमेंट प्लान्स एक्सप्लेन करते हो ऐसी लैंग्वेज में जिसमें कोई मेडिकल जार्गन नहीं होते. मेडिकल जार्गन, आई होप यू अंडरस्टैंड, मेडिकल जार्गन इज लाइक, यू कैन से स्टूल. हम स्टूल किसको बोलते हैं? बॉवल मूवमेंट को बोलते हैं. और हमारे घर में जो हम लेमन लोग हैं, वो स्टूल किसको बोलते हैं? द सिटिंग फर्नीचर, है ना. सो इट इज अ मेडिकल जार्गन. सो यू हैव टू make your language free of these kind of medical jargon. Then again you give information to the patient, then patient will have an active participation in his treatment in any situation, and they will be very cooperative with you, and rather than being only passive recipients. And again, informed consent. जब आप किसी से consent ले रहे हो, then also you have to provide them the right information, the consequences, the procedure, anything which required consent, you need to give the information. There are other skills, sharing observations and feelings. ऑब्जर्वेशन, आपको लग रहा है पेशेंट के हाव भाव से आपको लग रहा है अरे ये तो मुझे परेशान लग रहा है. सो शेयरिंग ऑब्जर्वेशन, आई नोटिस दैट यू आर लिटिल एंग्शियस टुडे. आई हैव नोटिस आप ऊपर नीचे कर रहे थे वार्ड में. तो यू आर शेयरिंग ऑब्जर्वेशन कि मैंने देखा आपको. सो पेशेंट को लगेगा अरे हाँ, मेरे को ऑब्जर्व किया जाता है, आई एम एन इम्पॉर्टेंट पर्सन. शेयरिंग फीलिंग्स इज again you have to label the feelings of the patient. ठीक है. like I can see that this news is upsetting for you. ठीक है. तो हमें जो इमोशन चल रहा है पेशेंट के दिल में या अंदर, उसको हमें लेबल करना होता है. ठीक है. तो you have to share feelings. Next, other important skills are focusing, clarifying and asking relevant questions. Focusing is जो जरूरी बात है जिसके लिए वो आपके पास आया है, उसी पे फोकस करो अपने कन्वर्सेशन को. क्लैरिफिकेशन, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो अज्यूम मत करो, पेशेंट से दोबारा पूछो, कुड यू टेल मी दैट, कुड यू जस्ट क्लैरिफाई, आप मुझे इसके बारे में थोड़ा सा और बता सकते हैं. यूज ओपन एंडेड क्वेश्चन. क्लोज एंडेड क्वेश्चन से हमें वास्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है. लाइक अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे, आपको कल नींद आई, आपने खाना खाया, सो वो यस और नो में आंसर होगा. लेकिन अगर आप उसको पूछोगे कैसी आई, ठीक है, तो आप कैसा फील कर रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, जो कि पेशेंट in which patient can express his emotions or express whatever he is feeling. Now there are some pitfalls and barriers also.
सी हमारा कम्युनिकेशन हमेशा स्मूथ नहीं होता, हमेशा देयर आर सम हर्डल्स ऑल्सो whenever you are making a therapeutic relationship with the patients. So these are some common pitfalls which we should avoid. First is interrupting. कभी कभी हम पेशेंट को सुनते हैं पर हम ये सोच रहे होते हैं कि अब मैं इसको जवाब क्या दूं, तो और बीच में कुछ वो ऐसा बोलता है, फिर आप इंटरप्ट कर देते हो बीच में। ठीक है, तो वो वहां पे क्या होता है कि वो पेशेंट को सिग्नल देगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये जो बोल रहे हैं वो एजेंडा ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी प्रॉब्लम से। सो डोंट इंटरप्ट, लेट द पेशेंट कंप्लीट फर्स्ट। अजम्पशंस, हम अज्यूम कर लेते हैं अच्छा पेशेंट को समझ में आ गया होगा, पेशेंट ऐसा फील कर रहा होगा, तो ये अजम्पशंस है। तो हमें अजम्पशन नहीं लगाने, हमें पेशेंट से फीडबैक लेना है। जार्गन, अगेन जार्गन मैंने अभी आपको बताया कि मेडिकल जार्गन्स यूज नहीं करने, दिस इज अ पिटफॉल। डिसमिसिवनेस, जो भी पेशेंट कंसर्न, डिसमिसिवनेस, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था लिसन फॉर द क्यूज, जिसमें पेशेंट कह रहा है कि मेरे को पेन हो रहा है, मैं ऑफिस नहीं जा सकता, पर नर्स कह रही है कि 0 से 10 में नंबर दो। सो दिस इज डिसमिसिवनेस, आप उसके कंसर्न को मिनिमाइज कर रहे हो, तो वो ट्रस्ट और ओपननेस को डिस्करेज करेगा। Now, these are some barriers. I hope or I'm sure that you have studied about these barriers. So we have categorized these barriers into 4 categories: environmental, personal, cultural, and physical. So if I talk about environmental is anything जो कि आपके फिजिकल एनवायरनमेंट में, जैसे कि नॉइज बहुत हो रहा है वहां पर जहां पर आप पेशेंट से बात कर रहे हो, या वहां पे प्राइवेसी नहीं है, वहां पे बार बार कोई आके इंटरप्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये सारा इन्वायरमेंटल बैरियर है। नेक्स्ट है पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर क्या होता है, हम जब पेशेंट के साथ बात करें तो हमारे अपने ही कुछ वैल्यूज हैं, अपने ही प्रिजुडाइज हैं, अपने स्टीरियोटाइप्स हैं। जैसे मैंने आपको बोला, जैसे आप सब्सटेंस अब्यूज के साथ डील करते हो, मतलब अल्कोहलिक पेशेंट, स्मैक यूजर, तो वहां पर बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप्स होते हैं हमारे दिमाग में या सोसाइटी में। सो वो पर्सनल बैरियर्स हैं। नेक्स्ट है कल्चरल। कल्चर होता है लैंग्वेज बैरियर। मैं यहाँ पे पहाड़ों पे हूँ, हमारे यहाँ ज्यादातर ये पहाड़ी रीजन के पेशेंट्स हैं, तो उनको कुमाऊनी बोलनी आती है। स्पेशली जो बहुत ओल्ड एज लोग होते हैं ना, उनको हिंदी ज्यादा समझ में नहीं आती। और हमारे पास टीचर्स भी हैं जो हिंदी स्पीकिंग हैं, या हमारे पास बच्चे हैं जो हिंदी स्पीकिंग हैं। सो दिस इज लाइक कल्चरल बैरियर इज देयर, वेयर लैंग्वेज डिफरेंसेस कुड बी देयर, ओके। एंड बिलीव्स, लाइक अगर आप किसी और रिलीजन के पेशेंट को हैंडल कर रहे हो, तो बिलीव्स में भी डिस्क्रिपेंसी आ सकती है। देन अगेन देयर इज फिजिकल। अगर पेशेंट को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, हियरिंग प्रॉब्लम है, विजन इम्पेयरमेंट है, तो दीज कुड बी द बैरियर्स। सो बैरियर्स जो है, इट कुड अराइज फ्रॉम एनवायरमेंट, इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व और ब्रॉडर कल्चर एंड फिजिकल कंटेक्स्ट। सो वी नीड टू रिकॉग्नाइज दीज ऑब्स्टिकल्स इन द, अगर आप इन ऑब्स्टिकल्स को रिकॉग्नाइज करोगे, पहले इनको रिकॉग्नाइज करके आपको ओवरकम करना पड़ेगा, देन ओनली योर कम्युनिकेशन कुड बी इफेक्टिव. Now, there are some non-therapeutic techniques also, which we need to take care of. So these are challenging. You are challenging the patient. Like पेशेंट का जो परसेप्शन है उसको कह रहे हो, हाँ मैं बताती हूँ उसका एग्जांपल। डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस के पेशेंट होते हैं साइकेट्री में। सो लेट से पेशेंट को डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है, भाई मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, इसमें जहर मिला हुआ है। नाउ यू आर सेइंग, अरे कैसे नहीं खाओगे, इसमें मिलाया जाए, तुम तो झूठ बोल रहे हो। समझ में आया? ये चैलेंजिंग है। मुझे वहां कोई दिख रहा है या मुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है, अरे कोई आवाज नहीं है, ऐसे ही बोल रहे हो तुम। दिस इज कॉल्ड चैलेंजिंग, ठीक है। तो अदर चैलेंजिंग नहीं करना है पेशेंट को। यू हैव टू टेल, आई अंडरस्टैंड कि ये आवाजें हैं, ये आपके लिए रियल है, बट मेरे को ये नहीं सुनाई दे रही है। दिस इज कॉल्ड थेराप्यूटिक। देन प्रोबिंग एंड डिफेंडिंग। प्रोबिंग का मतलब है कि अनवांटेड इंफॉर्मेशन को बार बार कुरेदना, ठीक है, उसकी पर्सनल लाइफ को जो नहीं बताना चाह रहा है, बार बार उसको कुरेद रहे हो, दैट इज प्रोबिंग। और देन डिफेंडिंग, अगर मैं बात करूं, डिफेंडिंग का क्या होता है, इसका एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। जैसे एक पेशेंट एडमिट है, बहुत दिनों से एडमिट है, उसका डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है, तो वो कह रहा है अरे पता नहीं कैसा डॉक्टर है, मुझे अभी तक डायग्नोस नहीं कर पा रहा है ये। तो आप क्या बोलोगे, अरे आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, आपको पता है उनको कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने पेशेंट्स उन्होंने ठीक किए हैं। तो दिस इज कॉल्ड डिफेंडिंग। यू डोंट हैव टू डिफेंड, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि उसको आप अदर वे में डील करो, ठीक है। देन यू हैव गिविंग एडवाइस एंड मिनिमाइजिंग। नाउ डोंट गिव एडवाइस टू द पेशेंट। जब हम काउंसलिंग भी कर रहे होते हैं ना किसी की, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सजेशंस देते हैं, एंड उसमें से पेशेंट को खुद ही पिक करना होता है कि मैं
क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप एडवाइस दोगे तो पेशेंट को अगर वो एडवाइस पसंद नहीं आई तो वो नहीं करेगा। सो डोंट गिव advice, don't direct the patients, put the ball in the court of the patient, and don't minimize the feelings. Again minimizing, जो मैंने अभी पीछे भी बताया कि you are, जो वो कंसर्न शो कर रहा है उसको डिफ्लेक्ट कर रहे हो। सो ये वाले जो बिहेवियर है वो हम करते हैं, पर हम अनइंटेंशनली करते हैं, ठीक है, अनइंटेंशनली कर देते हैं, बट ये क्या करते हैं, ये थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप को डैमेज करते हैं। इट हैज अ लास्टिंग डैमेज टू द therapeutic relationship. So these are some of the non-therapeutic techniques which we need to avoid. Now the ripple effect of communication. So ripple is, जब हम किसी तालाब में या पानी में पत्थर डालेंगे ना ठहरे हुए पानी में, तो वो क्या होता है, वो एक वेव क्रिएट करता है, पूरे पानी में फैलता है। उसी तरह इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करती है। इट मींस इट विल cater to so many aspects of healthcare. ये क्या करेगी, अगर आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा तो इट विल बिल्ड ट्रस्ट एंड सेटिस्फेक्शन। पेशेंट को हर्ट फील होगा, पेशेंट रिस्पेक्टेड फील करेगा, वो मोर सेटिस्फाइड होगा, आप भी सेटिस्फाइड होंगे। ट्रीटमेंट अडेरेंस, अगर आप सही तरीके से कम्युनिकेट करते हो तो पेशेंट अपना ट्रीटमेंट कंप्लायंस रखेगा, वो अपना सही समय से दवाई लेगा, वो बीच में दवाइयां नहीं छोड़ेगा, या वो पूरा ट्रीटमेंट करेगा। अगेन अगर ये सब होता है तो डेफिनेटली क्रोनिक कंडीशंस जो होती हैं उनको आप बेटर मैनेज कर सकते हो, बेटर आउटकम्स होगा, एंड डेफिनेटली क्लियर कम्युनिकेशन होगा, तो देयर विल बी less number of medical errors and adverse events. So this ripple effect will be seen in these areas of healthcare. So this is my last slide. This is the key takeaways. What all things we need to consider? First is communication clinical है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी बाकी स्किल्स है। आपको इंजेक्शन देना है, आपको आईवी लाइन लगाना है, आपको एनजी ट्यूब डालनी है, ये जितने इंपॉर्टेंट है उतना ही कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एवरी टेक्निक मैटर्स। एवरी टेक्निक मैटर्स, चाहे आप पेशेंट को सुन रहे हो, आप पावर ऑफ साइलेंस दिखा रहे हो, या कोई और टेक्निक यूज कर रहे हो, जितनी भी टेक्निक्स मैंने बताई है यहाँ पे, ये हर टेक्निक इक्वली इंपॉर्टेंट है। अवॉइड द पिटफॉल्स जो अभी डिस्कस किए, प्लीज अवॉइड दोज पिटफॉल्स। उसको कॉन्शियसली पकड़ो, कॉन्शियसली एड्रेस करो, एंड यू जस्ट कॉन्शियसली अवॉइड दोज थिंग्स। एंड अगेन कम्युनिकेशन टू मेक द हेल्थ केयर सर्विसेज बेटर और टू मेक द बेटर आउटकम ऑफ द पेशेंट्स, कम्युनिकेशन इज अ टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक अकेला आपने सीख लिया और बाकी लोगों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं है तो पेशेंट्स के साथ, तो वो भी चीजें खराब करता है। तो इट इज अ टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटायर टीम। सो आई थिंक आई हैव covered all the important aspects of communication. Here I would like to show a video. मैम मैं वीडियो शो कर लूं एक? Yes, please. I hope it will run here. ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, हमें चल जाता है तो वेरी गुड। ये एक वीडियो है जो हमने बनाई थी, और इसमें मैं बस ये बताना चाहती हूँ, इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ये रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। मतलब ये रियल में, मैं एक सुपरविजन पोस्टिंग पे थी बच्चे के साथ वार्ड में, तो ये रियल में मेरे सामने हुआ था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वाला सिनेरियो हम इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। तो लेट्स सी इफ इट इज, मुझे बता दीजिएगा चल रहा है या सुनाई दे रहा है। आप शेयर करिए। चल रहा है मैम, शेयर्ड है क्या ये स्लाइड में ही आपका पीपीटी है? ओके ओके, वीडियो आई है? थिंक आप इसको क्लोज करिए फिर वीडियो एक चलाइए। मिनट, फिर मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा। अभी आया मैम? यस, स्टार्टेड। अभी आ रहा है मैम, आ रहा है, चल रहा है। आवाज थोड़ी सी दे दीजिए। मैडम जी, ये मैडम जी ये भर्ती के लिए भेजा था। एक मिनट रुको, कहाँ चली गई मैडम? बस भाभी, कोई नहीं, शांत रहो, शांत। कहाँ चली गई? देख, रुको भाभी, मैं देख के आती हूँ, आप यहाँ बैठो। अरे
अरे यार सबके पेशेंट नहीं देखूं क्या यहाँ पे? अब पता नहीं कहाँ कहाँ भाग जाते हैं। बैठो भाभी बैठो। मैडम जी क्या कर रहे हो? मैडम जी ये भर्ती के लिए भेजा था नीचे से, बहुत तकलीफ हो रही है इनको देखिए। यार अब एक और एडमिशन। ठीक है तो वहाँ वहाँ लेटाओ उनको, जाओ वहाँ लेटाओ। कहाँ मैडम जी? वहाँ उस बेड पर आओ। ओ भाभी चलो इधर ही बैठ जाते हैं। यहाँ बैठो। अरे हुआ नहीं अभी तक क्या? मैडम कर रहे हैं मैडम जी। ठीक है आप बाहर जाओ, आप बाहर जाओ। ओ चलो बैठो 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 बैठो। नीचे बताया ही होगा कि तुम्हें दवाई लगानी है। ठीक है एक सुई लगा रही हूँ मैं। चलो चलो ठीक से बैठ जाओ जरा। दिखाओ हाथ दिखाओ। दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे भाई ये चूड़ियां क्यों इतनी पहन के आ जाते हो आप हॉस्पिटल में? अब यहाँ सुई लगेगी, सूजन आ गई तो दिक्कत हो जाएगी, फिर बोलोगे कि हॉस्पिटल में इलाज ठीक से नहीं होता। उतारो इनको। दिखाओ, इनको तो तोड़ना ही पड़ेगा। मैडम जी मेरी नहीं, तो फिर उतारो। सर ने बोला कि डिपार्टमेंट निकल रहे हैं। मैम है वो ऑनलाइन फैकल्टी है। ठीक है जब निकल जाए तो बुला लेना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम पे वेस्ट करती रहूं। और कितने पेशेंट मेरे पास यहाँ पर, ठीक है जब उतर जाए तो बुला लेना। उसका नाम शो करेंगे ना इधर, वो असिस्टेंट है वो है, कोई भी ऐड कर सकते हैं ना। तो बस सर ने मना कर दिया। सर कहते वो सिर्फ एग्जामिनेशन पर्पस हम एक दो बार देखेंगे कि वो आ रहा है कि नहीं। ये भी कंफर्म नहीं है वो आएंगे कि नहीं आएंगे। मैडम जी नमस्ते। मैडम नमस्ते। मैडम ने एडमिशन के लिए भेजा था, इनको बहुत तकलीफ हो रही थी। अच्छा अच्छा क्या हुआ? इनको घबराहट हो रही है बहुत। ओके मैं इनका बीपी वगैरह चेक कर देती हूँ, आ जाइए उस बेड पे ले जाते हैं इनको। आप आराम से पैर ऊपर करके लेट जाइए। ठीक है मैं बीपी अपरेटस लेकर आती हूँ। वीडियो क्लियर नहीं आ रही मैम। तुम लोग अंडा पता क्या ना अंदर वालों को जीने देंगे ना हम जीने। वीडियो तो क्लियर है, आप अपनी तरफ से नेटवर्क चेक करें प्लीज। लेट जाइए लेट जाइए। ये बंद हो गया है क्या थोड़ा सा साइड ऑनलाइन? मेरा नहीं चला। जी बीपी तो इनका ठीक आ रहा है। मैडम जी मैं आपकी फाइल देखती हूँ, अभी बताती हूँ। बैठोगे? अच्छा इनकी ना नीचे से एक दवाई लिख कर आई है, अभी मैं वो दवाई चढ़ा देती हूँ, उसके बाद इनको थोड़ा अच्छा फील होगा। ठीक है आप लेट जाइए, तब तक मैं सामान लेकर आती हूँ। बस बस घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं चढ़ा देती हूँ, आप प्लीज बाहर चले जाइए थोड़ी देर, मैं हूँ इनके साथ। ठीक है गंगा जी आपको ना एक दवाई चढ़नी है जिसके लिए मुझे एक सुई लगानी पड़ेगी। उसके लिए आपके हाथ पे एक सुई लगेगी और फिर दवाई चढ़ेगी। ठीक है अब आपने ये चूड़ियां पहनी हुई हैं, ये उतारनी पड़ेंगी। तो मैं ट्राई करती हूँ। मैडम मैंने कभी पहनी। अच्छा कोई बात नहीं, आपने कल ही पहनी है, मैं समझ सकती हूँ। आप ना इसको अभी उतार दो, जब जाओगे तो दोबारा पहन लेना। ठीक है ट्राई करो। ओहो अच्छा ठीक है, कौन है वो आपके साथ, नाम क्या है उनका? ज्योति ठीक है कोई नहीं, अभी आप आराम करो मैं बुलाती हूँ। ज्योति जी। हाँ जी मैडम जी। एक्चुअली इन्होंने ना अपने हाथों पे चूड़ियां पहनी हुई है इतनी सारी। ठीक है अगर ये चूड़ियां हाथ पे रही और मैंने सुई लगा दी तो बाद में सूजन हो सकती है, उससे दिक्कत आ सकती है। ठीक है
तो आप ना वहाँ हमारा वॉशरूम है, इनको जाके ले जाइए, वहाँ पे साबुन रखा है, अच्छे से साबुन से ये चूड़ियाँ निकल जाएंगी आराम से। फिर मैं दवाई लगाती हूँ। जी मैडम। ठीक है, फिर मुझे बुला लीजिएगा। जी मैडम। कोई दिक्कत हुई तो बता दीजिएगा। ठीक है मैडम, आ जाइए। उधर आओ भाभी, उतार लेते हैं, चलो। Hello. So I think it is clear कि how we need to deal with the patient. ये बहुत छोटा छोटा सा वीडियो था, दो आपको ऐसा लगा होगा इसमें कुछ कंसर्न नहीं है, बट ये ऐसा हुआ था एग्जैक्टली। सो मैंने इसको डील किया था इस पेशेंट को, तो मैंने यही एक वीडियो डेपिक्ट करने की कोशिश की थी यहाँ पे कि हम किस तरह से थेरेप्यूटिकली पेशेंट्स को डील कर सकते हैं. सो आई होप माई क्लास इज क्लियर टू यू. इफ देयर इज एनी क्वेश्चन देन आई एम open to answer. Hello, ma'am. Ma'am, please stop sharing this video first, then we can open this. Is it okay? Yeah, yeah. The others can also open their videos. If anything is there, you can put in the chat box. Or Jasmine is here. Okay, she is in meeting. So, is there any question before we start for the closing? मैं आप सभी लोग को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश का TNI स्टेट ब्रांच जो है हमारा, ये पूरा 1 साल का हम लोगों ने ये वेबिनार सीरीज स्टार्ट किया है, जिसका आज पहला लेक्चर था जो डॉक्टर रश्मि रावत ने लिया. दैट वाज द थेरापेटिक कम्युनिकेशन. हर हफ्ते एवरी सैटरडे हम लोग एक वेबिनार रखेंगे. वी ऑलरेडी शेड्यूल्ड मोर देन 50 वेबिनार्स. तो आप लोगों में से जितने भी फैकल्टी मेंबर, प्रिंसिपल्स एंड एसोसिएट प्रोफेसर्स हुए ज्वाइंड, आपका कॉलेज अगर TNI यूपी के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो आप TNI यूपी स्टेट का मेल आईडी पे मेल करें कि हम आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं. एक सैटरडे हम आपके कॉलेज के साथ कोलैबोरेट करेंगे और आप अपनी तरफ से अपना स्पीकर दे सकते हैं. आपके सारे बच्चे उसमें रजिस्टर्ड रहेंगे. बाकी के लोगों के लिए भी ओपन है. आज देख रहे हैं आप लोग सभी लोग ओपन है. सभी लोग को ज्वाइन करना है क्योंकि दैट इज फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट. और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा स्टूडेंट जितना, जो अभी बर्नआउट सिचुएशन में क्लास में भी बर्नआउट हो रहा है, अभी हम देख रहे हैं ना, इसीलिए सारे जितने भी लेक्चर्स हैं सारे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है. तो कोई भी कॉलेज अगर कोलैबोरेट करना चाहते हैं TNI यूपी स्टेट ब्रांच के साथ तो आप हमको मेल करें. भी हम मेल आईडी चैट बॉक्स में डाल देंगे. भूमिका मैम है, आप डाल दीजिए तब तक upstate@gmail.com. एंड यू प्लीज रिक्वेस्ट कि हम जो है आपके साथ में कोलैबोरेट करना चाहते हैं. और कौन से सैटरडे में डेट आप देंगे, हम अपने हमारे पास ऑलरेडी शेड्यूल्ड है. नेक्स्ट सैटरडे वी आर गोइंग टू कोलैबोरेट. प्लीज राघवेंद्र सर म्यूट कर दें प्लीज. विवेक बंद कर दो. ಇಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಹಾಕಿ ಬೇರೆ ತಗೋಬೇಕೆ ಆಗ್ತದ. ಅದು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರ Ma'am, you are muted. मैं भी म्यूट हो गया. ओहो. तो मैं बात कर रही थी कोलैबोरेशन की. एवरी सैटरडे हम लोग कोलैबोरेट करेंगे. हर सैटरडे 2 से 3 एक लेक्चर होगा. अगर किसी के पास लिंक नहीं पहुंच रहा है तो आप लोग यूपी TNI का फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उस पेज पे विजिट करें. आपको लिंक मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा. दैट इज प्योरली फ्री. और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सके सैटरडे को 2 से 3 ये लिंक अपने सारे स्टूडेंट के साथ शेयर करें, क्योंकि और फैकल्टी के साथ शेयर करें. हम लोग जिस सिचुएशन में अभी चल रहे हैं उसमें ये देखा गया है कि हमको जो है मेंटल हेल्थ पे ज्यादा काम करना है. तो सारे के सारे वेब हैं वो मेंटल हेल्थ पे है. जितनी भी सीनियर फैकल्टीज इसमें मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, they can also share their CV in the same mail ID. We will definitely approach you for the further classes if it is possible from your side. So this is a collaboration program from entire UP. So आप सभी लोगों के हाथ का साथ मिलने से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे. So we need all your cooperation in this field. And TNI UP is always very much fast in the field of education. Whatever the suggestion, whatever the things we are
seeing that it is lacking and we can do it, we are trying to do it. And we are always open for your suggestions. Please put everything in the chat box. Either you can mail on the given mail ID that I think share this information to your principals also and others also, but the collaboration will be only from the Uttar Pradesh nursing colleges. That is the actually the seal over there. So please, you try to collaborate with us, and we are definitely to serve each and every college wherever the reach is there, whether it is in urban area, either the rural area. We are trying to catch every college, and whatever the better in the education field we are able to give, we are trying to give it. So thank you so much everyone for joining. I will jump to the Rashmi ma'am's talk. As I am seeing the chat box, it is full of thank you, wonderful session, lovely session, very informative and very interesting, very real. As Prashla ma'am in the very beginning she said that आपने बहुत अच्छे example दिए हैं, real example दिए हैं. एंड गिरजा मैम ने बोला बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ आप आगे आए हैं. सो आपका ये मनीषा डेविड ने भी बहुत अच्छा लिखा है. सब लोगों ने कंटिन्यू अप्रिशिएट कर रहे हैं. नाइस एंड थैंक यू. सो ये सब देखने के बाद हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है. मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देती हैं, इसीलिए तो हमने आपको पकड़ा है. सो थैंक यू. आप अनम्यूट करें अपने आप को रश्मि मैम. थैंक यू मैम. आई मतलब आई एम सो थैंकफुल कि आपने मुझे इस लायक समझा. So I'm नहीं so नहीं, thankful to you. always you are with us. If Girja ma'am is here, I would like to just share a few words here. Our Anjalakshi madam is there. She can also give the feedback. Arun Bagaria sir is here. They are all principal, vice principals on the screen. Kailas Institute, all the faculties and the students have joined. You can give the feedback how you feel, so that in the next session we will try to make more interactive, or more if anything is lacking over here, we can go with the more and more updated version. We'll come with the updated version if it is there. Please आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके अपना फीडबैक 1 मिनट में हम लोग को दे सकते हैं. सो हमें अच्छा लगेगा. Yes, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am Rashmi ma'am and Dipti ma'am for organizing this. It's especially ma'am Rashmi ma'am was explained fully Hindi because children are wants to understand for their own language. अगर हमने कुछ भी समझाए उसी लैंग्वेज में समझाए तो उसकी इजी होगी. तो इसीलिए सब लोगों को बहुत अच्छा लगा. उन्होंने हिंदी की तरफ से बताया, उसका स्टोरी में भी ऐसे उन्होंने वीडियो बना के ऐसे दिखाया, बहुत अच्छा लग रही थी. बट मैम ने, दीप्ति मैम ने इनिशिएशन लिया है, कब से टीएनए शुरू हो गया, सब जगह विद द टीम के साथ हमेशा एक्टिव था. एवरीबॉडी, सबकी सीवी बढ़ गई, सबकी स्कोर बढ़ा, सबकी नॉलेज बढ़ा, सबकी सर्टिफिकेट बढ़ी. यूनिवर्सिटी लेवल पे सबने अपने अपने एटलीस्ट आपकी वैसे एवरी पर्सन मस्ट बी अटेंड टू 3 वेबिनार फॉर एवरी मंथ compulsory. So it's a way for increasing their weightage as well as they are increasing their knowledge. अब उसी के थ्रू एक दूसरा से बाईचांस में भी ज्यादा हो रही है आपकी वजह से. यू आर कलेक्टिंग फॉर एवरीबॉडी टुगेदर. एक किसी को हमारा टीम अच्छा है, हम लोग पावरफुल टीम के साथ उतरे हैं. यूपीएन इज अ वेरी पावरफुल टीम. आपने आपने सबको कनेक्ट किया, तो कनेक्ट वैसे नेटवर्क अच्छा हो जा रही है. उसी के वजह से किसी को भी कुछ मालूम है नहीं में भी दे भी मालूम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. हाँ मैम. रश्मि मैम कहती है मैं एक पीपीटी के साथ रेडी रहती हूँ, पता नहीं आप फोन कब कर देंगे. तो बहुत अच्छा लगा मैम. टीम एग्जैक्टली आपकी टीम तो बहुत एक्टिव है पूरी करने में, हर चीज में. आपने कैसे 1 बताएंगे वो 2 रेडी करेंगे, ऐसी टीम मैक्सिमम. अभी जैस्मी मीटिंग में फिर भी स्क्रीन पे है. सो मैक्सिमम मेरी टीम सच में बहुत अच्छी है. मेरी बहुत अच्छा लगा वो रिपीटेड एक्सपोज होने में. इवन एक प्रोवर्ब बोलते हैं, अगर हम बार बार पत्थर को मारेंगे पत्थर में भी मुंह करेगा. Even the people doesn't able to gain their knowledge. अगर आपकी रिपीटली सेमिनार वेबिनार होने के वजह से बच्चों में भी इंटरेस्ट होके आगे चलेगा, कुछ अच्छा यूटिलाइज करेगा, आप देखिए प्रैक्टिस करेगा अपने अपनी जगह में. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Arun sir, you are there. You can also give feedback. Your 100 student joins a student. Thank you so much for making them to join in the group. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Very interesting, very useful for students. तो कैसे स्टूडेंट्स को ऐड नहीं करवाते मैम?
थैंक यू। एवरी सैटरडे आपको ऐड होना है, अच्छा सर अपने ग्रुप के साथ में। थैंक यू सर। गिरजा मैम की आवाज आई मुझे कहीं से। ढूंढ ढूंढ जी के मैम, लेके आई। कहाँ जी हो मैम, आप? गुड आफ्टरनून। दिख नहीं मेरा रहा। सिर्फ इतना कहना था कि थैंक यू TNAI यूपी ब्रांच स्पेशली, जिसको कि अब लोग जानने लगे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल, आपकी टीम, जिसकी वजह से मैं ये कहूंगी कि हम लोगों ने उसको एपिनेफ्रिन और डोपामिन कोरामिन लगा के उसको सरवाइव कर लिया है। और अब ये सर्वाइवल दैट इज वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग है। और जो टॉपिक आज कवर किया है रियली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउअडेज पीपल। जैसा कि नर्सिंग का स्टैंडर्ड हम देख रहे हैं और इसमें दिखाया भी गया, जो मैडम ने एक ये स्क्रीन में दिखाया है, उसमें ये दिखाया है कि लोगों का बिहेवियर पेशेंट्स के लिए कैसे चेंज हो रहा है। दे आर बिकम वेरी मतलब प्रोफेशनलिज्म चीजें नहीं है। और प्रोफेशनलिज्म को शो करने के लिए हम नर्सेस के लिए सिर्फ काम इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है। जैसा हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि हीलिंग टच, तो हीलिंग कम्युनिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्क। यस यस ये यस। बहुत अच्छा टॉपिक आप लोगों ने चुना है और इससे नर्सिंग का स्टैंडर्ड यूपी में ही नहीं, और जो लोग भी जुड़ रहे हैं वो भी इससे मोटिवेट होंगे। और ये सभी लोग इस तरह के प्रोग्राम अगर करेंगे तो नो डाउट कि हमारे नर्सिंग का स्टैंडर्ड और यूपी में नर्सिंग का स्टैंडर्ड अपग्रेड होगा, जिस स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं, नॉट इन टीचिंग ओनली, इन क्लिनिकल एरिया टू। Thank you so Thank you, much thank you. for giving this chance. Thank you so much, ma'am. Thank you. Gomti madam, you are writing. You can come on the screen and talk. Vice Principal Amethi. Yes. हाँ, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट। या सी वाइस प्रिंसिपल मैडम आप लिख रहे हो, आप बोल Good दीजिए ना, afternoon, आपका ma'am. Good बोलना सुनना afternoon, ma'am. चाहेंगे। Good afternoon to all Good TNA afternoon. members and team and students also from student nurses. Also, they have been joined here. So thank you, ma'am. Actually, I little late joined because I said to my faculty and some of the faculties they have been joined because I was in the class. And ma'am, this is very nice session, ma'am. That last few slides I have been saw with the madam Rashmi Rawat madam, and especially the videos also, which has been naturally they have been taken and they have been proposed because this is the one which is needed for the student. Everyone they are learning from the book picture, like bookworms are there, AI like that they are learning, but they couldn't. This is what I am also saying to our students, how therapeutically how we can able to move the healthy more aspects. So this is very nice and informative sessions, and this is the first time I'm joining in this. So already it has been going on, no ma'am? Yeah. This is today's the first. You can also collaborate with us with the mail in the mail Yes, box. ma'am. Yes, ma'am. So Sure, one day, ma'am. yeah. Really, And because you are taking yes. more initiatives, ma'am, with Jasmine ma'am and yourself and your team. Really, because like these small things which make us a ocean. Little changes we can make to the students. Literally, very informative. I'm thinking I was lately joined. I missed the session like that. Thank you so much for joining, ma'am. Thank you Thank you, so ma'am. much. Thank you, ma'am. Thank you, one and all, ma'am. Actually, today more than 3,000 people joined this webinar. So it is also a huge collection of the people to be on same screen. So thank you so much, ma'am, for joining. I can say there are so many. Next time onward, next week onwards, I'll put a batch wise, ma'am. Batch wise, I will put, and they can able to join and they can able to get, because it's related to mental health aspects. Literally, it is All, needed, Thank you, ma'am. ma'am. Yes. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Ma'am, Rashmi ma'am want to say I something. want Yes, to yes. say that this is just a part of clip I have shown, which video I have developed, but this video is available in YouTube channel of AIMS Rishikesh. So if Okay. anybody would like to watch, they can watch it there. You can visit AIMS Rishikesh YouTube, and then you can see all the videos that madam has prepared during her study. Actually, it's a 30 minutes video. 30 minutes video. Communication skills are discussed. So thank you so much everyone for joining, and I'm very happy, and my team is very happy to see still 203 are on screen directly, and off screen you can see the students are seated over there. So I really madam. thank who is saying thank you? Rahul is there. You are there. Deepti ma'am, Lakshmi is I would also like there. to tell something. Lakshmi is our program officer.
You also thanks to everyone, Lakshmi. You're the huge people you have First of gathered in all, your I would program. like thank you so much, ma'am. Thank you. First of all, I would like to thank Rashmi Rawat ma'am. Her class was like मैं बस इतना बोलना चाहूंगी लाइक कोई डिलीशियस डिश है जिसको खा रहे हैं और हर बाइट में इतना मजा आ रहा था, मतलब पहाड़ मेरा से ये सर्व हुआ है पर्सनल है, हर स्पून मैडम। पे ऐसा मजा आ रहा था कि क्या है। तो दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर पहाड़ों की वी रानी आर है वो। as a teacher also, we can explain, we can get the ideas how to explain. So that opportunity, thank you and the team, UPTNI team also, for giving this kind of opportunity, though we are working together. And the second one is I would like to thank the principals, the professors, associate professors, and our dear darling students. I can see still more than 200 people still on screen. They are there, though others are in the seminar room. They are there. So this shows how effective the class was. This Yeah. shows that UPTNI is doing something. So big clap for UPTNI as well as the speaker of the day. Thank you so much, everyone, for joining. And after that, after this next week also, we would like to have gathering like this, and really it is very fruitful. Thank you, everyone. So I am just going to give some answers which are questions are put in the chat box. The first thing, आप सभी लोग बोल रहे हैं पीपीटी दे दीजिए। देखिए पीपीटी जो होता है वो एक टीचर की बहुत मेहनत होती है। पीपीटी डायरेक्टली किसी को दिया, दैट इज द कॉपीराइट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन हु हैज प्रिपेयर्ड दैट पीपीटी। ओके, उनका बिना परमिशन के हम फोटो भी नहीं खींच सकते हैं। सो पीपीटी देना फुल्ली डिपेंड करता है स्पीकर पर। हम लोग उस टॉपिक को थोड़ा सा मर्ज करके पीडीएफ फॉर्म में आपको दे देंगे, इस तरीके से कर सकते हैं। बट प्लीज मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ कि आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल कभी पे भी आप वेबिनार में रहेंगे, प्लीज डोंट आस्क फॉर द पीपीटी, दैट इज नॉट एट ऑल लीगल, दैट इज एथिकली नॉट लीगल। ओके, सो आप लोग पीपीटी कभी भी ऐसे डिमांड न करें। जब क्लास चल रहा है तो आप थोड़ा सा अटेंटिव होकर उसको सुने, क्योंकि वो एक पीपीटी बनाने में आप देखिए ना मैडम ने कितनी काउंसलिंग की, अपना वीडियो बनाया, कितना मेहनत किया उसके ऊपर। हाउ कैन शी शेयर इमीडिएटली टू एनीवन, है ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो आप बैठ जाओ, आप जो है पीपीटी ऐसे ना लिखे, बार बार हमें बार बार लिखना ठीक नहीं लगता कि नहीं दे सकते। आप आज ही अंडरस्टूड कर ले कि यू प्लीज डोंट आस्क फॉर द पीपीटी। इफ द स्पीकर इज रेडी, डेफिनेटली विल शेयर द पीपीटी। ओके, द सेकंड थिंग इज दिस, immediately after finishing the webinar you are asking for the certificate. See my dear, this is a free webinar series. When you will get a feedback, जिसने भी रजिस्ट्रेशन किया है उस और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में एक फीडबैक लिंक आएगा, आपको वो फीडबैक भरना है और आपका अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। और एक बार में एक ही, मतलब एक मेल से एक ही डाउनलोड होने वाला है। आप ट्राई भी मत करिए कि आप किसी और को शेयर कर लेंगे, है ना। सो ये एक टाइम लेने का प्रोसेस है, 2-3 दिन लगेंगे। एवरी टाइम जस्ट इन द चैट बॉक्स, मैडम आप सर्टिफिकेट क्यों देंगे, सो दैट मींस यू ओनली ज्वाइन फॉर द सर्टिफिकेट, नो, यू नीड टू बी लर्न व्हाट मींस, कितना अच्छा आपका टॉपिक है, कितनी अच्छी चीजें आपको जानने को मिल रही। कौन सर्टिफिकेट पूछ रहा है आज की डेट में अगर आपको नॉलेज ही नहीं है। If you don't know anything about therapeutic communication, who is going to see the certificate? No one is going to see the certificate, है ना। So आप वो भी आपको मिल जाएगा, that is already fixed, that आपको मिलेगा। But just immediate after the finishing the webinar, you started certificate दो set. It's not a distribution of certificate, है ना, my dear co-learners. So आप feedback भरेंगे, आपको certificate मिल जाएगा। In case अगर आप stuck हो गए हो feedback form में और आपको certificate download नहीं हो रहा है, तो भी आपको उसी ग्रुप में मैसेज करना है कि मेरा सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो जो भी ऑर्गेनाइजर है, जो उस सर्टिफिकेट प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो आपसे कंसर्न कर लेंगे। इसके लिए इतना हौच-पौच करने का जरूरत ही नहीं है ना। सो मेरी समझ से दोनों चीजें आप लोग को समझ आ गई होंगी। We not ask for the PPT till the speaker is not ready. We will fill the feedback form and will receive our certificate healthfully.
thank you so much, everyone. I hope you will understand. Once again, I'm requesting all the principal, vice principal, professor, associate, assistant, and who are related with the College of Uttar Pradesh. You can come with the collaboration with UPTNI with such a wonderful webinar series for whole 1 year. And every Saturday we will be on the screen. So you can come on the screen with your own logo, with your own college. For that, you need to be put application in the UPTNI mail ID. So we will be waiting for your mail, and Madam Bhumika, our secretary, she will go through with that and will let you know who is coming in the next Saturday. So thank you so much, everyone, for joining. I hope this is enough for today. Thank you so much. Effort yourself to join on such a screen. Thank you so much. Jai Hind to everyone. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. ma'am. Thank you all, ma'am. Thank you, everyone. Thank you all. Thank you. Thank you, ma'am.